Welcome, and once again I will continue with the new chapter number 5, class 12th history through the eyes of traveler, perception of a society. कैसे travelers ने मूव किया और कैसे सोसाइटी को उन्होंने देखा, right? तो first thing which is there in your chapter that why women and men travel. We never come across women mainly, we come across with men only. They travel from one place to another, but what's the reason why is it so? Mainly they travel in search of work. Mainly migration is still today also carried due to this reason only when they need some work. काम के लिए लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. अदरवाइज देयर कैन बी सम क्लैमिटीज, कुछ ऐसी क्लैमिटीज होती थी, डिजास्टर्स होते थे जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. सो दिस मे बी द रीजन वाई वुमेन एंड मेन यूज्ड टू ट्रेवल, राइट? Sometimes for profit also, traders and merchants also move from one place to another with their caravans. We come across some examples of priests and pilgrims like Saint Sang, Vaiyan, Megasthenes. These are the people who are mainly came to India, visited India, and they see India in their own perception. And some people move due to adventure. So that was maybe the reason why people move from one place to another. But whenever any person comes from outside land, they encounter with different type of things. Who visited or come to stay in a new land, they have to face a very severe position of a world, right? अगर कोई किसी देश से माइग्रेट करके आते हो तो आपको जो नई लैंड की प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ आपका सामना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टाइप ऑफ एनकाउंटर्स दे वर फेसिंग, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ लैंडस्केप, बिकॉज उनका लैंड कुछ और टाइप का होगा, आपका लैंड कुछ और टाइप का होगा. सो दे इनकाउंटर लैंडस्केप, फिजिकल इन्वायरमेंट, बिकॉज देयर लैंडस्केप, देयर फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ देयर कंट्री कैन बी डिफरेंट, राइट? Secondly, the main problem which is that is of customs. Their customs are different, here customs are different. Languages which they cannot understand because they are from different area, right? Their beliefs can be different, practice of people can be different. That's the reason why they are facing a lot of problems. But travelers, if they have to stay here, they have to adapt them. So most of the travelers try to adapt this type of differences. They accustom to proper customs, their languages, these type of barriers which give them obstruction, they try to adapt them, right? With some exceptional, right? So we will see them very carefully, their accounts, what they wanted to write and what they recorded, right? So that's very very important and it's remarkable. उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्रॉनिकल्स को लिख दिया, लेकिन हमको इसमें कुछ एक्सेप्शन दिखती है कि वुमेन अकाउंट हमें नज़र नहीं आता है. इन पर कुछ भी वुमेन ट्रेवलर्स का अकाउंट बहुत कम हमें नज़र आया, बिकॉज वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल लेफ्ट बाई वुमेन. हमको कोई ऐसा ट्रैवल अकाउंट नहीं मिलता जो वुमेन ने लिखा हो और ट्रैवल कर. मेनली वी कम अक्रॉस विद द मेल्स, सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन हेयर आल्सो. सो मेन what they used to record, they left account also, right? They used to write on different subjects, अलग अलग subjects पे भी वो लोग लिखते थे, right? In their subject matter they can be differ from one another. कुछ लोग कोर्ट के अफेयर्स को लिखते थे कि कोर्ट में क्या क्या होता था, they used to write on that. But main focus was on religion, what type of religion these people are having, what type of practices they used to practice, what type of architecture they have, right? So what type of monuments they have, they used to write on these type of themes. तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस थीम्स पे लोग लिखते थे, तो आपने बोला रिलीजियस मैटर्स पे लिखते थे, आर्किटेक्चर पे लिखते थे, मोनूमेंट्स पे लिखते थे, अफेयर ऑफ कोर्ट्स पे लिखते थे, राइट? सो वी कम अक्रॉस विद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन होता है वो विजयनगर का होता है. विजयनगर इज इन साउथ, इट्स इन कर्नाटका, राइट? And that has been founded by Krishna Dev. So that's a famous ruler of Vijayanagar Empire, and it lies in Tungabhadra river. So most important description has been written on the city of Vijayanagar. At that time it was a very prosperous city. So 15th century, a person from Herat is a place in Afghanistan. एक ट्रैवलर आया 15th century में जिसका नाम था अब्दुल रज़ाक समरकंदी, because he belongs to Samarkand. This place is in Afghanistan. इसीलिए उसके साथ ये टाइटल लग गया अब्दुल रज़ाक समरकंदी. Mainly he was a diplomat, राजनेता था, who visited from Herat to India, और इंडिया को देखने आया था. बट सम ट्रैवलर्स कोई दूर तक नहीं गए, मेन कैपिटल तक रह कर वो अपनी बात को लिखते थे, एंड दे डोंट वांट टू ट्रेवल अस लॉन्ग.
because they came here as a diplomat, so they want to see there in court only. So we come across मुगल के ट्रैवलर्स का भी अगर हम लोग देखें तो मुगल ट्रैवलर्स भी जो थे, they don't visit outside, they were in the periphery of capital itself. तो मुगल एम्पायर के बारे में भी अगर हम देखें, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह थे, sometimes they travel, but they travel in empire only, and whatever they see nearby the area capital, they used to record the observation. तो ये जो observations होती थी या recording होती थी, it cannot be accurate because they are very close to capital. अगर आज भी देखें हम स्टेट का कोई कैपिटल देखें तो उसमें आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा दिखती है, बट अदर एरियाज आर नॉट प्रोग्रेसिंग एज कम्पेयर टू द कैपिटल. So mainly travelers found interest in looking only for customs, what type of custom people's having, they used to write on that only. उनकी लोक कहानियों, folklore के बारे में, उनके traditions के बारे में they want to write. So our knowledge of lot of things has been enriched by these travelers. So ऐसा नहीं है कि उनका account की कोई importance नहीं है. They are, if we come across lot of things now, that is due to these travelers only. तो in this chapter we'll see how our knowledge of past can be enriched. हमारे past की knowledge को कैसे enrich किया इन writers ने, अपने description से, अपने perception से, अपनी consideration से, whatever they write for society, right? So first person who visited India, that time his name was Al-Biruni, right? So he visited this subcontinent. Why I'm using the word subcontinent here? Because India is a subcontinent and maximum countries were part of India only, and mainly on Indian subcontinent these three writers are very important. These three travelers were there. तो उनमें से Al-Biruni came from a place Uzbekistan. Uzbekistan is a country, right? That is a breakaway part of USSR. ये एक हिस्सा था उज़्बेकिस्तान, आज एक कंट्री का नाम है. उस टाइम ये हिस्सा जो था वो अफगानिस्तान का हिस्सा था. So he came from Uzbekistan, Al-Biruni, in 11th century. Then second person who came to India, his name was Ibn Battuta, who came from Morocco. This place is in Africa, right? तो अफ्रीका में एक कंट्री का नाम है मोरक्को. तो ही मोरक्को से आया था, that is the northern western part of Africa in 14th century. Then a Frenchman came to India. His name was Francois Barnier. He was a Frenchman. उसको डॉक्टर भी बोला जाता है, ठीक है. सो उसका नाम फ्रैंकिस बार्नियर था. ही केम इन 17th century. So the authors came from different social cultures. Their backgrounds are different, their education idea was different, they belong to different societies. So they have a difference of writing also, because whatever they belong to different customs, different cultures, different environment. So they will write according to that. तो ऑथर्स आर वेरी अटेंटिव टू एक्टिविटीज़. एक ट्रैवलर जो आया, एक रिकॉर्डर जो आया, एक राइटर जो आया, दे आर ऑलवेज वेरी अटेंटिव टू एक्टिविटीज़, राइट? एवरीडे एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस को दे यूज टू सी वेरी केयरफुली, एंड देन दे रिकॉर्डेड, एंड वी कम अक्रॉस व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन. We come across with some writers from India itself. Therefore, the word indigenous has been written here, right? So everyday activities में वो जो भारत में होता था उसके बारे में वो लिखते थे, ठीक है. So indigenous writer, not routine matter. अगर आप अपने घर में हैं तो आपको अपने खाने की कीमत नहीं है. मम्मी कुछ भी बना के देती है, you don't say something great. But if you go to another part, then you notice what special things are made for that. So same way, writer, Indian writer, not write routine matter. But for these people, because they are traveling from other parts of the world, so they write routine matter. What type of matters were there, how the things were managed, so that has been recorded. So there is a difference between these writers and indigenous writers, right? तो ये आपका एक बहुत बड़ा difference आपको देखने को मिलेगा. तो आपको इन अकाउंट्स में जो फॉरेनर ट्रैवलर्स थे उन्होंने इंडियन रूटीन मैटर्स पे लिखना शुरू किया. तो हु मेनली इफ़ यू सी दिस ट्रैवलर, तो अगर आप लोगों को दिखेगा तो आपको बहुत सारा डिफरेंस भी दिखेगा इसमें. तो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट ट्रैवलर. उसका नाम था अल-बिरूनी, एंड हिज बुक किताब-ए-उल-हिंद दैट ही रोट. एंड फर्स्ट 1.1 point is there in your book, that is from Qasim to Punjab. Qasim is a place in Afghanistan, say Punjab tak. So there is a biography which he has wrote, right? अल-बिरूनी के बारे में अगर हम बताएं तो अल-बिरूनी born in 973. That place is in Qasim.
और आज का जिसको उज़्बेकिस्तान कहते हैं, उज़्बेकिस्तान उस टाइम अफगानिस्तान का हिस्सा था. तो ही वॉज बॉर्न देयर. वॉट फॉर दिस ख्वाजिम इज़ फेमस फॉर, बिकॉज ख्वाजिम वॉज अ वेरी फेमस टाउन फॉर एजुकेशनल सेंटर. ख्वाजिम उस टाइम जो फेमस था वो एजुकेशन के लिए फेमस था, एंड देयरफॉर ही वॉज एजुकेटेड इन दैट बैकग्राउंड. So therefore he got a good education that time, whatever available to him. So he was an educated person who came to India and he wrote a lot of things about India. So Al-Biruni ने कई languages सीखी, because if you want to stay here for a longer time then you should be accustomed with the customs, languages and all. So he was versed with so many languages. He was very clear about so many languages. He knows Syrian language, he know Arabic language, he know Persian language, he know Hebrew, he knows Sanskrit, right? But Al-Biruni was not versed with the Greek language, because maximum literature that time was written in a Greek language. But वो Greek philosophers को जानता था, जैसे Plato हो गया, Aristotle हो गया. So he knew the work of Plato, Aristotle and Greek philosophers. सो मेनली इफ़ यू सी ट्रांसलेशन अगर हम देखें, ये ग्रीक को भी उसने अरेबिक में कन्वर्ट किया. तो जो बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफर्स हुए ग्रीक में, उनकी लैंग्वेज, उनकी चीज़ों को उसने ट्रांसलेट किया, तो उनको पढ़ा. तो ठीक है, अरेबिक ट्रांसलेशन किया. सो हाउ ही केम टू इंडिया, देयर वाज ए रूलर कॉल्ड मोहम्मद, राइट? सुल्तान मोहम्मद ने इन्वेड किया था ख्वारिज़म को, राइट, दिस प्लेस इन अफगानिस्तान. तो लेटर ऑन अल-बिरूनी एंड अदर पोएट were taken by सुल्तान, उनको अपने साथ ही ले गए. सुल्तान ने जब अटैक किया था ख्वारिज़म पे, उसके बाद वो ले गए इनको, और अपने साथ कई स्कॉलर्स को ही राजा लेके चले गए और अपने कैपिटल में लेके जगह, और उनका कैपिटल था गजनी, अगेन प्लेस इन अफगानिस्तान. तो अल-बिरूनी भी उनमें से एक था. सो इन दिस वे अल-बिरूनी केम टू इंडिया. सो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ दैट. सो अल-बिरूनी एज अ हॉस्टेज, right, but people like him of his character in Ghazni. So when he came to Ghazni as a hostage, but later on he developed linking with the city. He tried to observe everything very carefully. Al-Biruni spent his life, maximum life in Ghazni, because he loved this place and he stayed there for such a longer period. So rest of his life until his death at the age of 70 he was there in Ghazni only. Al-Biruni का interest किस में था इंडिया में? So mainly he developed so much interest in India and he became a part of India later on. So Al-Biruni ने कई subjects पे काम किया. He worked on so many subjects, especially that was not unusual because he was an educated person. So Al-Biruni was very happy to see Sanskrit astronomy. Astronomy को बहुत अच्छी तरह से उसने पढ़ा, जो संस्कृत में की थी. और मैथमेटिक्स में भी उसने काफ़ी कुछ लिखा, मेडिसिन पे भी काफ़ी कुछ लिखा, जो इंडिया में मेडिसिन दैट टाइम डेवलप, राइट. सो ही वाज वेरी मच हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ वर्क. सो मैथमेटिक्स पे काम किया, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया, मेडिसिन पे काम किया. लेटर ऑन ही ट्रांसलेटेड ऑल दिस वर्क इन अरेबिक. सो मैक्सिमम वर्क हैज़ बीन डन थ्रू ट्रांसलेशन बाय अल-बिरूनी 8th century. तो उसने जितना काम उसको अच्छा लगा, दैट ही ट्रांसलेटेड टू अरेबिक लैंग्वेज इन 8th century. सो व्हेन ही डेवलप्ड अ ट्रस्ट विद किंग, स्पेशली इन पंजाब, सो पंजाब आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ गजनवी एम्पायर, बिकॉज गजनी लोगों ने पंजाब पे भी अटैक करके उसको अपना हिस्सा बना लिया था. देन ही ट्राइड टू हैव अ कॉन्टैक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन. उसने कोशिश करी लोकल पॉपुलेशन के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए. Therefore, he developed a good mutual trust और understanding इन लोगों के साथ बना लिया उसने. Why he did like that? Because he want to observe everything very carefully. Because ordinary person can tell him more information as compared to the people who living in court. So Al-Biruni mainly was in Brahmins also. Brahmins के साथ भी उसका contact हुआ, कुछ और लोगों के साथ भी उसके contact हुए. So he spent some time in with Pandits also, Brahmins also, scholars also. So he learned Sanskrit also. So he tried to learn Sanskrit also and study about their religion and their philosophical texts also, because a lot of literature has been written in Sanskrit that time. But he was not clear. That was the main obstacle which he was facing that time, because he was not clear with the language of Sanskrit. So Al-Biruni moved to northern India, where when itinerary is not clear,
So he likely to travel in Punjab and different parts of northern India. So mainly जो आपका literature था, mainly that was written in Arabic, right? And he wrote in Arabic language. Then literature of Al-Biruni, he, because he traveled to different parts of India, so he traveled up to Sahara in Africa, in the west. और उसका जो ट्रेवल था वो रिवर वोल्गा, रशिया में नॉर्थ तक उसने ट्रेवल किया. रिवर वोल्गा इज इन रशिया. सो बिफोर 1500 तक Al-Biruni met so many people. ऐसा नहीं है कि Al-Biruni से पहले किसी ने काम नहीं किया. Lot of people have done lot of literary works, especially in India. Then 1.2, this is the new topic that is called Kitabul Hind. Kitabul Hind is a work which has been done in Arabic language, written in Arabic language. It's a very simple and very lucid type of literature which he has written, Al-Biruni. किताबुल हिंद को अगर हम देखें, इट्स अ वेरी वॉल्यूमिनियस, बहुत बल्कि है साइज में, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखा गया है. इट इज़ मेनली वॉल्यूमिनियस टेक्स्ट divided into 80 chapters, and in 80 chapter different subjects has been covered. इसमें religion को भी इसने cover किया, इसमें philosophy को भी cover किया, इसमें festivals को भी cover किया, इसमें astronomy को भी cover किया. Alchemy is a method from where you can turn any metal into gold. तो ऐसे subjects को भी उसने अपने subjects में cover किया. उसने manners को भी cover किया, उसने customs को भी cover किया, उसने social life को भी cover किया, उसने Veds जो भी इंडिया में यूज होते थे that also seen by him. And what type of iconography, law, metrology के बारे में भी उसने देखा है. And mainly what type of style he used to follow as a writer, what type of method he used to follow, right? Al-Biruni adopted a distinctive structure. हर में उसने अलग अलग मेथड का इस्तेमाल उसमें अपनी राइटिंग में किया, और वो हमेशा स्टार्ट करता था एक क्वेश्चन के साथ. उसके बाद उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन he used to give. So he start everything with a question and then he used to describe about that. Or mainly he wrote on Sanskrit traditions, right? And then he tried to compare both the culture of his culture and Sanskrit tradition. So he tried to do it like that. So scholars also compared writing with mathematical orientation. जो भी scholars थे उस time mathematics के ऊपर बहुत कुछ लिखते थे. So जो अगर आज के हम scholars देखें उनको ऐसा लगता था कि जो उसकी राइटिंग थी वो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी, राइट? एंड ही वाज वेरी प्रिसाइज टू राइट वर्ड्स, एंड ही वाज वेरी विद श्योर प्रेडिक्शन ही यूज्ड टू राइट. सो देयरफॉर ऐसा लगता था दैट ही राइट्स विद अ मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, इसीलिए उसको मैथमेटिकल ओरिएंटेड टाइप ऑफ पर्सन आल्सो बोलता है. बट Al-Biruni ने ऐसा क्यों किया कि अरेबिक को चूज़ किया? Because maximum literature he wrote in Arabic, because he was interested to write in Arabic, right? And for those people who lives on the borders of subcontinent and they knew Arabic language, for his audience he wrote maximum literature in Arabic language. So whatever subjects on which subjects he used to write, right? And with other languages he was not so familiar, but Arabic language he was very much familiar, right? And he was very clear about translation, now how to translate the work. So, और उसको अडेप्ट भी कर लेता था. उसने कई बुक्स को ट्रांसलेट किया जो संस्कृत में लिखी गई थी, पाली में लिखी गई थी, प्राकृत में लिखी गई थी, अरेबिक्स में. एंड वॉट एवर द सब्जेक्ट्स ही यूज्ड टू टेक, फैबल्स, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उसको उसने अपनी कहानी उसमें अपनी स्टोरीज में लिखा. एस्ट्रोनॉमी को भी उसने जगह दी और मेडिसिन को भी जगह दी. तो इफ़ यू सी क्रिटिकल अगर हम देखें उसका टेक्स्ट के बारे में, द मेनली द टेक्स्ट विच ही हैज़ रिटन, ही ट्राई टू इम्प्रूव ऑन ईच टेक्स्ट. अपने हर टेक्स्ट पे वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहता था. देन सेकेंड पर्सन हु केम टू इंडिया दैट वाज इब्न बटूता, और उसकी बुक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम था रिहाला. And 2.1, this is again subtopic of this about Al-Biruni, and now Ibn Battuta.
right? He was also known as global trotter. What does global trotter stands for? A person who used to move from one place to another. So mainly we'll see Rihala was written by a person called Ibn Battuta in Arabic. So Ibn Battuta, this is again a book he wrote जिसको उसने बुक ऑफ ट्रेवल्स बोला और उसका नाम दिया रिहाला, एंड द लैंग्वेज विच ही यूज्ड दैट वाज अरेबिक. रिहाला इज अ बुक on social and cultural life of India. So he tried to trace social and cultural life of India and then he wrote on it. But it provides so much extremity. जो इंडिया में होता था उसने अपने हिसाब से उसको लिखने की कोशिश करी. And he tried to write very interesting detail about the social and cultural life of the subcontinent. उसने बहुत अच्छी तरह से social और cultural life को इंडियन सबकॉन्टिनेंट को लिखने की कोशिश करी in 14th century. How Ibn Battuta brought up? Basically, he was from Morocco. He was a Moroccan traveler, and he was born a place in Morocco that's called Tangier. And he had a very good family background. He was considered very respectable because he was born up in very educated family, and his family was known for they are very expert in writing Islamic religious law or Sharia. जो मुस्लिम लॉ होता है उसको हम शरिया बोलता है. सो इब्न बटूटा की अगर एजुकेशन देखें, इब्न बटूटा रिसीव्ड हिज लिटरेरी और स्कॉलस्टिक एजुकेशन फ्रॉम हिज फैमिली व्हेन ही वाज यंग, एंड मेनली ही गॉट हिज नॉलेज थ्रू ट्रैवलिंग. उसने अपनी अधिकतर नॉलेज थ्रू ट्रैवलिंग से ही करी, बिकॉज इब्न बटूटा को हम ग्लोबल ट्रॉटर बोलते हैं. ही ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड एंड देन ही रोट अबाउट इट. So most of other members of his class, Ibn Battuta considered experience through his travels, and that became an important source of his knowledge than books. जो पर्सन अगर नेचर से कुछ सीखेगा तो जल्दी सीखेगा instead of books. So he also is like that. So Ibn Battuta traveled throughout the world, therefore he known as global trotter. So because why he was known as global trotter? Because he loved traveling. He went to far off places. He tried to explore new world. नए नए जगहों को ढूंढना चाहता था, नए नए लोगों से मिलना चाहता था. So he traveled Syria, he traveled Middle East, right? तो इंडिया आने से पहले 1332-33 उसने एक धर्म की यात्रा करी मक्का में. मक्का is considered as a very pious place for Muslims, very sacred place for Muslims. So he traveled before coming to India to Makkah. And he traveled many times to Syria, right? ये सारी countries जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, that is in Middle East. He traveled to Iraq, he traveled to Persia. Persia means Iran. Then he traveled to Yemen, Oman. ये सब country closer हैं. And very famous ports also he traveled in East Africa. So when he traveled to Sindh is a place in India at that time, right? So coming through Central Asia, Ibn Battuta reached Sindh in 1333. But why he traveled to Sindh? वो सिंध में क्यों आया? Because he heard a lot of things about Muhammad bin Tughlaq. He was also very educated ruler. So he heard a lot of things about Muhammad bin Tughlaq. Due to his reputation, and he came to know that he was a very generous patron. किताबों से बहुत प्यार करता है और लिटरेरी लोगों से बहुत प्यार करता है. Therefore he was lured for Delhi. इसलिए उसको लगा कि दिल्ली आना चाहिए. Therefore he came to Sindh, and then he passed before coming to Sindh he crossed Multan and Uch. These are the places in Pakistan now. So जैसे ही he met Sultan was impressed by his scholarship character because he was an educated person. और उसके बाद सुल्तान अपॉइंटेड हिम एज ए काजी होता है जज, तो उसको दिल्ली का जज बना दिया. एंड व्हाट ही डिड व्हेन ही बिकम अ काजी, राइट, ही रिमेन इन दैट पोजीशन फॉर सो मेनी इयर्स. बट वन डे व्हेन ही वाज king was not happy and he thrown them into prison. उसको जेल में डाल दिया गया. लेकिन थोड़े दिन के बाद when the things were clear, he again became काजी. जब सुल्तान से उसने अपने मामले को क्लियर करवाया और उसके जेल से निकाल कर उसको फिर से वही सर्विस दे दी गई. Then 1342 he was sent to China.
सुल्तान उनवाय, ठीक है, मंगोल रूलर से मिलने के लिए गया। सुल्तान ने अपना डिप्लोमेटिक मैसेंजर बनाकर इसको सेंड किया चाइना में। व्हेन ही रीच टू चाइना, राइट, देन ही क्रॉस मालाबार कोस्ट आल्सो। तो अपनी यात्रा उसने मालाबार कोस्ट से शुरू की। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट मालाबार कोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट केरला, राइट। सो ही प्रोसीडेड टू मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया पार करता हुआ, देन ही रीच टू मालाबार कोस्ट। देन मालाबार कोस्ट से अगर केरला को देखें और मालदीव्स को देखें, श्रीलंका इज वेरी क्लोज टू दैट। सो ही विजिटेड दिस टू प्लेसेस आल्सो। इब्न बतूता विजिटेड मालदीव्स आल्सो, और फिर मालदीव से वो श्रीलंका गया, where he stayed for 18 months as Kaji. Then he thought to move to Sri Lanka. Then Ibn Battuta also visited Bengal also, Assam also, right, Malabar coast से और मालदीव से, और अपना मिशन पूरा करने के बाद चाइना से, then he came back to Bengal and Assam also. So he visited both the places. He visited Sumatra also, right. So Sumatra is in Indonesia. Then he reached to a Chinese port called Zaitun. So उसने अपनी शिप जो पकड़ी चाइना के लिए, वो सुमात्रा से पकड़ी थी। सुमात्रा is an island in Indonesia. And then he took another ship and he reached to Chinese port called Zaitun. आजकल Guangzhou है इसका नाम। This is a very famous industrial town in China. So he reached to Guangzhou. Then this was a long traveling in China. He spent so much time, especially in China. So he traveled extensively in China, and then he reached up to Beijing. Beijing is the capital of China, you already know about. He traveled extensively in China, as I told you, and he reached up to Beijing. जब चाइना जाएगा तो बीजिंग जाएगा. Beijing is the capital of China. So after traveling to China, he came back to India. India में आया, but he didn't stay for such a long. Therefore he was known as global trotter. Global trotter का मतलब मालूम है ना, जो आदमी घूमता रहे, ठीक है. So he tried to return back to his home 1347. So if you see, कंपैरिजन किया जाता है इब्न बटूता का मार्को पोलो के साथ. मार्को पोलो वाज अ ग्रेट एडवेंचरर. ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सारे वर्ल्ड को घूमा जाता. तो उनका इब्न बटूता के साथ कंपैरिजन, इब्न बटूता आल्सो ग्लोबल ट्रॉटर एंड मार्को पोलो वाज आल्सो सेम थिंग. तो उनके जो अकाउंट्स हैं, मेनली डैट वाज कंपेयर्ड विद मार्को पोलो. मार्को पोलो वाज अ ग्रेट ट्रैवलर. सो ही स्टेड देयर इन चाइना फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड. तो बहुत लंबे टाइम तक रहे थे. इवन मार्को पोलो स्टेड इन चाइना फॉर सच ए लॉन्ग टाइम. मार्को पोलो मेनली बिलोंग टू वीनस, ठीक है. तो वो इटली से आए थे और ही रिमेन देयर इन चाइना फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड एंड ही स्टेड देयर फॉर दैट. सो ही केम टू इंडिया आल्सो, right. So that is why we are comparing Marco Polo and Ibn Battuta with that. So Ibn Battuta ने जो भी देखा, because he moved all over the world, so उन्होंने बहुत चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया अपनी ऑब्जर्वेशन में. And he was a very intelligent person. Meticulously he did this all version. He observed new cultures, new people, new beliefs, new values. So he recorded according to that. बट ट्रैवलिंग इन 14th सेंचुरी वॉज वेरी वेरी हाजिडस. बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि उस टाइम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट डेवलप्ड एंड रूट्स वॉज नॉट सेफ. तो हमको ये भी दिमाग में रखना है कि जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे 14th सेंचुरी में, तो डैट वॉज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और आर्डियस टाइप ऑफ ट्रैवलिंग वॉज देयर. आज के मुकाबले में उस टाइम ट्रैवल करना वॉज नॉट सो ईजी. सो ही रोट वन एक्सपीरियंस ऑफ हिम that he was traveling from मुल्तान. मुल्तान इज़ इन पाकिस्तान. जब वो मुल्तान से दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, तो पहली बात उनको 40 दिन लग गए. मुल्तान इज़ इन पाकिस्तान एंड इट्स नॉट वेरी फार ऑफ. तो उनको 40 दिन लग गए उस ट्रैवलिंग से, मुल्तान से दिल्ली में आते हुए. और उनको 50 दिन लगे सिंध से दिल्ली में आने में. ये दोनों जगहें बहुत दूर दूर नहीं है. अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी फार ऑफ. So we saw them that he took a lot of time. So that shows mode of transportation was not good. Road transport बहुत अच्छा नहीं था. Then his visit was there from दौलताबाद to Delhi. तो उन्होंने दौलताबाद से दिल्ली की तरफ भी ट्रैवल किया. उनको 40 दिन लग गए. तो दौलताबाद इज़ इन यूपी, तो उनको 40 दिन नहीं लगने चाहिए. अगर आज कोई जाना चाहेगा तो उनको सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच जाएगा. Then he visited from ग्वालियर. ग्वालियर इज़ इन एमपी और दिल्ली तक, तो उनको ऑलमोस्ट 10 दिन लग गया. सो दैट शोज के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट गुड एंड देयरफॉर ही रोड दैट दिस ट्रैवलिंग वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट.
सो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ही फेस्ड, इब्न बटूता ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का उनको सामना हुआ। पहली बात तो ट्रैवलिंग वॉज वेरी इनसिक्योर बिकॉज दैट टाइम नो सिक्योरिटी वॉज देयर एंड रोड्स वर ऑलमोस्ट बैरन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट गुड। सो ही अटैक्ड सो मेनी टाइम विद बैंड्स ऑफ रॉबर्स। उनका मुकाबला कई बारी रॉबर्स के साथ भी हुआ जब व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग। सो मेनली इब्न बटूता प्रेफर कारवा। अब क्वेश्चन ये होता है कि इब्न बटूता ने कारवा में क्यों जाते थे, ग्रुप में क्यों जाते थे, दैट्स कॉल्ड कारवा। So because that area was not secure, right? So he preferred mainly traveling in Karwa with his own people, right? And therefore he thought कि कोई शायद रॉबर्स को लूटेगा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो he wrote an experience when he was traveling from मुल्तान to Delhi। जब वो मुल्तान से दिल्ली की तरफ ट्रेवल कर रहे थे तब उनके साथ उनको कुछ हुआ कि रॉबर्स ने अटैक कर दिया और उनके कई लोग मारे गए थे, ठीक है। तो उनके कारवा पे अटैक हुआ व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली एंड सो मेनी फेलो ट्रैवलर जो उनके साथ वाले लोग थे दे लॉस्ट देयर लाइफ। सो दैट वाज आल्सो देयर। सो सेम स्टोरी वाज आल्सो हैपन विद सो मेनी ट्रैवलर्स हु विजिटेड दिस प्लेसेस, राइट। तो लेकिन कई लोग शायद सर्वाइव भी हुए होंगे, और लेकिन इब्न बटूता को अगर हम देखें तो वो सीवियरली वुंडेड हो गए थे इसमें। सो दिस इज़ द टॉपिक विच आई कंप्लीटेड। नाउ विल टेक ऑन 2.2 अकॉर्डिंग टू अ बुक, दैट इज़ एन्जॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज़। नाम से पता लग रहा है कि आदमी क्यूरियस होगा तभी विजिट करेगा, तो उसको उनको खुशी बहुत मिलती थी। तो कैन वी से इब्न बटूता इंट्रोवर्टेड ट्रैवलर, क्या वो दिल से चाहने वाले थे कि जिनको अपने दिल के साथ वो जाते थे? तो इब्न बटूता वॉज एन इंट्रोवर्टेड ट्रैवलर, इसीलिए उन्होंने सारे वर्ल्ड को ट्रैवल किया, क्योंकि अगर दिल में होगा ट्रैवलिंग करने का तभी देन ओनली यू कैन मूव। सो ही स्पेंड मैक्सिमम टाइम्स ही ट्रैवल थ्रू आउट द वर्ल्ड। He traveled North Africa, he traveled West of Asia, he traveled some parts of Central Asia, right? Whenever I'm talking about Central Asia, so he visited Russia also. Then he visited Indian subcontinent, he visited China. Then he returned back to his own land where actually he belongs to. He belonged to Morocco. So Morocco is in Africa. तो इतनी जगह घूमने के बाद then he came back to his place, that is Morocco. तो इब्न बटूता ने अपने रूलर को भी बोला क्या करना चाहिए। When he came back, right, he told his local ruler to issued instructions कि उनकी स्टोरीज़ को भी रिकॉर्ड किया जाए। तो जो रूलर था पहली बात तो उन्होंने बोला कि अपनी स्टोरीज़ को आप रिकॉर्ड करो, एंड देन ही रोट हिज स्टोरीज, ही रोट अबाउट डिस्क्रिप्शंस जो उनके साथ हुआ था, ही रिकॉर्डेड ऑल द थिंग्स, ही ऑब्जर्व एवरीथिंग वेरी केयरफुली, सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट दैट। तो ये सारा इब्न बटूता के बारे में मैंने आपको बताया। हम केम ऑफ फ्रेंचमैन, उनका नाम था फ्रैंकियस बार्नियर, उनके साथ डॉक्टर भी जुड़ता है। दैट आई विल टेल यू व्हाई हिज नेम इज एसोसिएटेड विद डॉक्टर, राइट, a doctor with a difference. So he came from France and he was a very intelligent person, right? So mainly if you see Portuguese का अगर देखें, पोर्तुगीज़ ने भी अपना डिटेल अकाउंट लिखा है सोशल कस्टम्स का इंडिया के बारे में, बिकॉज इफ यू नो फर्स्ट यूरोपियंस हु केम टू इंडिया वाज पोर्तुगीज। वास्को डी गामा में फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया, तो उन्होंने भी इंडिया का सोशल कस्टम्स के बारे में लिखा है। तो एक बार ये पोर्तुगीज ही अराइव टू इंडिया अराउंड 1500, देन ही रोट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडिया, राइट। इंडिया के सोशल कस्टम्स के बारे में लिखा, इंडिया के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा। लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस वर कैरिड आउट and our religious practices were fabulous that time. So a lot of people was astonished to see our religious practices, so they wrote about it. So there was a person, he was a Portuguese sailor, उनका नाम था Jesus Roberto. Then there was a person, lot of other people also came to India and wrote lot of things about it, right? So one was a Portuguese sailor, उनका नाम था Jesus Roberto Nobali. Even he translated Indian text, क्योंकि Indian text बहुत सारे थे उस टाइम. People doesn't know how to write, but lot of epics were written in that time. So he translated many Indian texts into European languages. तो अगर मैं यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो यूरोप में स्पेनिश भी हो सकती है, पोर्तुगीज भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है. सो दैट्स इट. सो अनदर वन मोर पर्सन केम, उनका नाम था डुराट बारबोसो. उन्होंने भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा. तो अगर हमें बेस्ट पोर्तुगीज़ राइटर के बारे में पता करना है तो वी हैव डॉटो बारबोसो. सो ही आल्सो रोट डिटेल अकाउंट ऑफ इंडियन ट्रेड. उन्होंने भारतीय ट्रेड के बारे में बहुत लिखा, स्पेशली जो ट्रेड
साउथ इंडिया में फ्लरिश हो रहा था, बिकॉज मैक्सिमम ट्रैवलर्स विजिटेड साउथ इंडिया। तो अगर पोर्तुगीज़ में भी पहली बार वास्को डी गामा इंडिया में आए थे तो ही केम टू केरला, राइट, कालीकट कोस्ट पे वो पहुँचे थे। एंड देन देयर वाज सो मेनी ट्रेडर्स हु आर वेरी वेरी रिच, सो ही रोड अबाउट देम। तो ये तो पोर्तुगीज़ की बात होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्तुगीज़ ही आए, कई यूरोपियंस इंडिया में आए। 1600 तक लॉट ऑफ कंपनीज वर फॉर्म्ड ऑफ यूरोपियंस, सो दे केम टू इंडिया। सो एज देयर वाज सो मेनी पीपल फ्रॉम डच, जब मैं डच बोल रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट नीदरलैंड्स। So many people from Netherlands also came to India. So many English people also came to India. So many French travelers also came to India. Then there was a French merchant called Baptiste Taverner. He also visited to India. तो उन्होंने भी विजिट किया था इंडिया को, और इंडिया को जब इन्होंने विजिट किया तो he was a French jeweler, जो ज्वेलरी का काम करते थे वो, उनका नाम था जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवलर। So he traveled India 6 times. Why he traveled India 6 times? Because of fabulous wealth which he got from India. So he wrote a lot of things about India. तो उन्होंने 6 बार ही विजिट किया, and he was fascinated with the trading condition in India. उनको अच्छा व्यापार का सिस्टम बहुत अच्छा लगा इंडिया में। अगर वो कंपेयर कर रहे थे इंडिया और ईरान को, तो इंडिया का उनको कंडीशन, ट्रेडिंग कंडीशन बहुत अच्छी लगी। एंड अगर ईरान, बिकॉज ईरान वॉज दैट टाइम रूल्ड बाई ऑटोमन एम्पायर, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगा जैसे उनको इंडिया में लगा। तो देयर वाज एन अगेन वन पर्सन फ्रॉम इटली, एक इटालियन डॉक्टर था, इनका नाम था मानुकी। उनको इतना अच्छा लगा इंडिया दैट ही सेटल इन इंडिया। सो कुछ ऐसे यूरोपियंस भी थे जो इंडिया में आके सेटल हो गए, राइट। उनमें से एक इटालियन डॉक्टर जिनका नाम था मानुकी, वो कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और इंडिया में ही सेटल हो गए। सो दैट वाज द स्टोरी, बिकॉज इंडिया वाज फैबुलस वेल्थ ऑफ टेक्स्ट आल्सो एंड लॉट ऑफ थिंग्स। Now we'll take on the main topic, that is Francois Barnier के बारे में अब हम बात करेंगे। What he observed in India, mainly he was a Frenchman because he came from France, and by profession he was a doctor, he was a political philosopher also, and he was a historian also। तो ऐसा नहीं है कि people doesn't write। So Barnier came to India। इंडिया में क्यों आया था वो? जैसे कई यूरोपियंस इंडिया में आए, तो वो भी इंडिया में आया in search of opportunities, because he listened a lot of things about India, इंडिया के fabulous wealth के बारे में सुना था। इंडिया को उस टाइम सोने की चिड़िया बोला जाता था। That's the reason why he was so much fascinated by that. So he came to India in search of opportunities. So he spent his time, उन्होंने अपना टाइम 12 साल यहाँ पे स्पेंड किए, from 1656 to 1668. That time Mughals were ruling us, and he was closely associated with Mughal court. मुगल के साथ है तो मुगल कोर्ट के साथ भी वो कनेक्टेड थे। Barnier was physician, I told you he was a doctor, right? तो उनको एक पर्सनल फिजिशियन थे दारा शिकोह के। दारा शिकोह was a brother of औरंगजेब, तो उनके वो डॉक्टर थे। जब उनके डॉक्टर होंगे तो डेफिनेटली उनका जो कनेक्शन रॉयल कोर्ट के साथ होगा वो ज़्यादा होगा। सो दारा शिकोह was a very liberal type of Muslims, right? औरंगजेब जैसे ऑर्थोडॉक्स नहीं था। So Dara Shikoh was a very very liberal type of, he translated Gita into different languages. So he was elder son of Shah Jahan, right? So then he wrote about दानिशमंद खान। उन्होंने दानिशमंद खान के बारे में भी लिखा, right? And because this दानिशमंद खान was a very famous scientist that time, he was very famous intellectual, philosopher, religious thought के बारे में लिखता था। And he was mainly from Armenia. Armenia is a place in USSR, right? और ये एक नॉवल था मुगल कोर्ट में, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। तो मेनली उनका जो राइटिंग का कंटेंट था, दैट ही ट्राइड टू कंपेयर ईस्ट एंड वेस्ट। व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड ईस्ट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, एंड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप, राइट? ही ट्राइड टू कंपेयर ईस्ट एंड वेस्ट। तो देन व्हाट ही एनालाइज्ड, उसको दोनों में से अच्छा कौन सा लगा, तो उन्हें वर्नियर ने ट्राई किया कंपेयर इंडिया और यूरोप को करने की कोशिश करी, बिकॉज ही ट्रेवल्ड सो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो ही रोट लॉट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, व्हाट ही सॉ। तो जो राइटर्स, जो ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं तो जो वो देखते हैं वो लिखते हैं। तो ही ट्राई टू कंपेयर इंडिया विद द सिचुएशन ऑफ यूरोप। तो दोनों में से उसको अच्छा कौन सा लग रहा था। तो बर्नियर मेनली डेडिकेटेड ऑल हिज राइटिंग टू किंग ऑफ फ्रांस। तो 14th राजा था किंग ऑफ फ्रांस, उनको उन्होंने सारी अपनी राइटिंग को डेडिकेट किया। दैट इज ड्यू टू हिम ओनली आई एम राइटिंग अबाउट इट। सो किस तरीके की राइटिंग मेनली ही यूज्ड टू डू, क्योंकि हर राइटर हैविंग इट्स ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग।
So many of his works were mainly in the form of letter form में लिखते थे वो लोग. Basically he was a diplomat, so he wrote things in letter form and he tried to influence his officials and other ministers. तो बर्नियर को जो इंडिया लगता था वो बहुत अच्छा नहीं लगता था, राइट. वो बहुत अच्छा नहीं लगने के कारण ही रोट लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया. तो बर्नियर डिस्क्राइब जो उसको इंडिया में दिख रहा था, तो उसको इंडिया की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं लग रही थी इफ़ यू कंपेयर विद डेवलपमेंट्स इन यूरोप, बिकॉज दैट टाइम यूरोप में बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें हो रही थी. तो इंडिया का फ्यूचर उसको नहीं अच्छा लग रहा था. तो लेकिन वॉट एवर असेसमेंट ही डिड फॉर इंडिया वॉज नॉट सो एक्यूरेट. तो जो वो लिखते थे क्योंकि यूरोप से वो बहुत फैसिनेटेड थे, सो ही ट्राई टू कंपेयर इंडिया विद यूरोप. तो यूरोप को बहुत अच्छा बताते थे, इंडिया को नहीं अच्छा बताते थे. तो हिज असेसमेंट वॉज नॉट एक्यूरेट. बर्नियर गॉट पॉपुलैरिटी व्हेन ही रोट लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही पब्लिश हिज वर्क. तो उनको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली. So maximum his work were published under Bernier's writing. That become very very popular. So Bernier के publication को in various languages it has been translated. तो Bernier के जो काम थे उनको publish किया गया फ्रांस में 1670 और 71 में, और उसके बाद it has been translated to different European language like English, Dutch, German, Italian. Next 5 years, lot of work has been translated to different languages. उनके एक काम को 8 टाइम भी रीप्रिंट किया गया. तो दैट इज़ आल्सो फ्रेंच में 1670 से लेके 1725 उनके अकाउंट को रीप्रिंट किया गया फ्रेंच में 8 टाइम्स. एंड बाय 1684 उनके काम को फिर से रीप्रिंट किया गया 3 टाइम इंग्लिश में. सो दैट वाज द थिंग. मेनली बर्नियर का जो था, अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्ट हमको दिखता है. जो अरेबिक और पर्शियन में लिखा जाता था और उनकी जो राइटिंग स्किल्स है उनमें बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है. बिकॉज दैट टाइम मेन लैंग्वेज वेयर वर्क वर रिटन दैट वाज इन अरेबिक एंड पर्शियन. तो अरेबिक एंड पर्शियन मेनली दे यूज्ड टू राइट इन manuscript that because paper was not invented that time in India, right? So mainly the work which was documented that was in manuscripts. Manuscript बहुत हैवी और वॉल्यूमिनस होते हैं, पत्ते पे लिखा जाता है, बाग ट्री पे लिखा जाता है, राइट. और इसीलिए मनुस्क्रिप्ट को मेनली पब्लिश नहीं किया गया था 1800 तक बिकॉज पेपर वॉज नॉट इन्वेंटेड. सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ दिस मार्कस बर्नियर. नाउ न्यू टॉपिक दैट इज मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल-बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन. तो अल-बिरूनी को कौन कौन सी चीज़ों का प्रॉब्लम होती रही संस्कृत के साथ और उन्होंने उसको ओवरकम कैसे किया. सो दैट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम he mainly faced, right? So mainly अगर ट्रैवलर्स के comparisons हम लोग देखें तो अगर इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें तो मैक्सिमम ट्रैवलर्स ट्राई टू कंपेयर इंडिया विद देयर ओन कंट्रीज, राइट. एंड दे ऑब्जर्व्ड जो कुछ हो रहा था इंडिया में, व्हाट एवर द प्रैक्टिसेस वर कैरिंग इन इंडिया विच दे वर फैमिलियर, सो दे रोट अबाउट इट. हर ट्रैवलर की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी थी लिखने के लिए. तो हर ट्रैवलर ने अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया. जैसा उन्होंने अंडरस्टैंड किया व्हाट दे ऑब्जर्व दे ट्राई टू डेसिफर अकॉर्डिंग टू दैट. सो अल-बिरूनी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. उसको बहुत अच्छी प्रॉब्लम पता थी. ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था व्हाट टाइप का प्रॉब्लम ही फेस्ड. तो ही वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम, सो मच प्रॉब्लम्स, राइट, जिसका उन्होंने सामना किया. सो ही रोट इन हिज बुक्स अबाउट सेवरल बैरियर्स, वट एवर ऑब्स्ट्रक्शन जो उन्होंने फेस की इंडिया में रहकर, जो उनको समझ नहीं आ रहा था इंडिया के बारे में. तो पहली बैरियर जो थी अल-बिरूनी के लिए लैंग्वेज, बिकॉज मैक्सिमम लिटरेचर दैट टाइम इन इंडिया वॉज रिटन इन संस्कृत, पाली और प्राकृत. दिस आर द 3 मेन लैंग्वेजेस मैक्सिमम लिटरेचर वॉज रिटन. So he was not aware of that because he was aware of different languages, but he was not aware about Sanskrit, he was not aware about Pali, he was not aware about Prakrit, right? Sanskrit is very different from Persian. Persian is a Iranian language. So Sanskrit काफ़ी different है Persian से. तो संस्कृत पहली प्रॉब्लम तो उसको हो रही थी लैंग्वेज की. संस्कृत was for very different क्योंकि ये बहुत डिफरेंट थी अरेबिक और पर्शियन से. एंड संस्कृत को सेम वे ट्रांसलेट करना इट्स नॉट ईजी, इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, राइट. तो उसको ट्रांसलेट करना डिफरेंट लैंग्वेज में, अपने आइडियाज़ में, अपने कॉन्सेप्ट्स में, इट्स नॉट ईजी, राइट. इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग एनी लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, अगेन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. दैट एस्थेटिक सेंस विल बी मिसिंग इन दैट.
तो आपको वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो मेन लैंग्वेज में है। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी फेस्ड। सेकेंड प्रॉब्लम जो अल-बरूनी को आ रही थी, दैट इज़ ऑफ religious belief, because he was Muslim or maximum Indians were Hindus that time, so उनकी religious practices were totally opposite to Muslims, so that was the reason why he was facing a problem. So this was second hindrance which he was facing. तो ये second problem थी। तो मैंने first problem आप लोगों को बताया कि language was the main problem. Second problem I told about religious belief. Third barrier to Baruni was self-absorption, how he can be a part of Indian society. When he can be part of Indian society, then he can write in better way, right? So mainly local population के साथ वो अपने आप को adjust नहीं कर पा रहा था, right? So he wrote lot of interesting facts about this type of problems. उसने काफ़ी कुछ लिखा इन problems के बारे में. So he wrote very interesting facts about that. So अल-बरूनी का dependence जो होता है, जब उसको language नहीं आ रही, उसका धर्म बहुत different है, तो he have to depend totally on वर्क ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स के जो टेक्स्ट होते थे उन्हीं पे उनको उसको डिपेंड होना पड़ा। तो लॉट ऑफ पैसेजेस विच आर रिटन इन वेदास और पुराणास, भागवत गीता एंड इवन वर्क ऑफ पतंजलि और मनुस्क्रिप्ट्स, तो इन कामों के लिए उसको संस्कृत पे टोटली संस्कृत स्कॉलर्स पे डिपेंड होना पड़ा। देन ही कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ इंडियन सोसाइटी इज है। अब इंडिया में उस टाइम बहुत स्टॉन्च बड़ी ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम था। We have four main varnas that time which was prevalent in India, and they were very strict rules and regulation has been imposed on all these four varnas. So he wrote about the caste system also. अल-बरूनी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कास्ट को, ठीक है, और अपने हिसाब से जो अपने देश में उसकी कास्ट सिस्टम था और जो इधर था। तो ही ट्राइड टू कंपेयर बोथ कास्ट सिस्टम ऑफ हिज कंट्री एंड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने देखा कि सोसाइटीज़ में कितना फ़र्क है। अगर हम पर्शिया का देखेंगे तो पर्शिया में ही रोड दैट दे वॉज कैटेगरीज, नो डाउट दे वर कैटेगरीज। सो ही रोड दैट पर्शिया हैड 4 मेन कैटेगरीज, राइट। अगर हम एंशियंट पर्शिया को देखें तो 4 मेन कैटेगरीज थी, कास्ट बोल सकते हैं आप। एक जो कैटेगरी थी दैट वॉज ऑफ नाइट एंड प्रिंस, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, एक उनकी कास्ट थी। सेकेंड कास्ट इज ऑफ मॉन्क, ठीक है, जो पुजारी होते हैं, जो मौलवी होते हैं, उनकी थी और लॉयर्स की थी। थर्ड कैटेगरीज ऑफ फिजिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, सो मेनी साइंटिस्ट की थर्ड कैटेगरी थी, राइट। और चौथी जो कैटेगरी थी दैट वाज ऑफ पीजेंट एंड आर्टिशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कास्ट विच वॉज प्रिवेलेंट इन एंशिएंट पर्शिया, नॉट ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन इसी कास्ट को उसने कंपेयर इंडिया के साथ करने की कोशिश करी। लेकिन पर्शिया में ऐसा कास्ट सिस्टम इतना यूनिक नहीं था बाय बर्थ। इंडिया में तो आप जिस धर्म में पैदा होंगे, जिस जाति में पैदा होंगे, तो आपको वही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बट पर्शिया इज़ नॉट लाइक दैट। सोशल डिवीजन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू बर्थ, तो इट इज़ टू नॉट वेरी यूनिक टू इंडिया। अल-बरूनी ने स्ट्रेस किया दैट कुरान इज़ द मेन बेसिस फॉर इस्लाम। सो ही टोल्ड दैट इन कुरान एवरीवन वाज कंसिडर्ड इक्वल। कुरान के हिसाब से सारे इंसानों को एक जैसा माना जाता है, राइट। ऑल मेन वर कंसिडर्ड इक्वल, राइट। So we should not have some problem with other caste. So he tried to do it. So अल-बरूनी ने इस कॉन्सेप्ट को भी डिसअप्रूव किया कि कुछ जातियाँ पोल्यूशन का कारण बनती हैं। जैसे शूद्राज के साथ बहुत बुरा हाल होता था, चंडालाज के साथ बहुत बुरा हाल होता था। तो he was not happy to observe this type of things, right? So he was not happy to accept Brahminical description about the caste, right? So he tried to disapprove the notion of pollution. So this question are also asked in exam. What type of notion of pollution was there? तो pollution किसको कहा गया इसमें? कास्ट सिस्टम को कहा गया। So he was not happy with that. अल-बरूनी का अपना व्यू था प्योरिटी का, कि कोई चीज़ भी इम्प्योर नहीं रह सकती है, राइट। कोई भी चीज़ जो इम्प्योर है वो प्योरिटी में आ जाती है, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन को रिगेन कर लेती है अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही फील्स, राइट। तो जो भी चीज़ इम्प्योर होगी it will regain its original condition of purity. So according to him he suggested like that. So उसने एग्जाम्पल भी दिया कैसे कोई चीज़ इम्प्योर होगी वो प्योर हो सकती है। जैसे सन जो है वो क्लीन करता है एयर को, राइट। तो जो सॉल्ट है जो सी में रहता है वो काफ़ी टाइम तक पॉल्यूट होता है, लेकिन जैसे सन सामने आता है तो आपको प्योर सॉल्ट देखने को मिलता है। तो अल-बरूनी के अपने व्यूज़ थे लाइफ पे, आर्ट पे। सो अल-बरूनी लाइफ
उसने बोला कि लाइफ अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है अगर ये पॉल्यूशन चलती रहेगी, तो कोई भी चीज़ अपनी प्योरिटी हासिल कर लेती है। तो अल्बरूनी का जो ये कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से उसने ट्राई करने की कोशिश करी। सो मेनली द कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल पोल्यूशन विच हैज़ बीन गिवन बाय ब्राह्मण्स was according to law of nature, according to him, right? So Al-Biruni tried to describe about this type of things, right? So mainly he told that caste system was influenced mainly by Brahmins. Brahmins के कारण ये caste system बहुत orthodox है, according to him, right? And because they only forced some rules and regulation on the society and they follow it. So उसके हिसाब से ऐसा है, right? सो संस्कृत जो टेक्स्ट थे वही रूल्स बनाते थे, ब्राह्मण्स ही रूल्स बनाते थे डिफरेंट कास्ट के लिए, और ये यूनिवर्सल वैलिडिटी होती थी उसकी। सो वट एवर द रूल्स हैज़ बीन लेड डाउन, द रूलर्स हैड टू फॉलो दैट सेम थिंग, राइट? सो वट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण जो चाहते थे वही वो लोग करते थे। रियल लाइफ में ये ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, राइट? रियल लाइफ कैनॉट बी सो रिजिड। सो क्लासिफिकेशन अब उसने ट्राई किया, राइट? सो जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है धर्म की, जाति की, वो अंत्येजिया के हिसाब से होती थी। तो ये कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए एक मैनुअल था। सो मेनली ही रोट अबाउट दैट टाइप ऑफ थिंग्स। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।